Hello students, myself Suresh VS. Welcome back to my channel. Let us continue the grammar session with the past continuous tense. See, in today's class we are going to learn the structure of past continuous tense, how to frame the negative sentences, as well as the yes or no question, information question, at last the uses of past continuous tense. So please pay attention to it. Now first of all, let us see what is the structure of past continuous tense. Past continuous tense का structure क्या है? Okay, so in past continuous tense, first comes subject, then two helping verbs are used, was or were, then followed by that verb, ing form of the verb plus object. See, past continuous tense, subject, then was or were, two helping verbs are used, then ing form of the verb, that is the present participle form of the verb or verb का fourth form plus object. Okay. So here was will be used with all the singular subjects. सारे singular subjects का साथ was use करेगा, and all the plural subjects what will be used, the were. Okay, so I was, we first person, we were, you के साथ आएंगे you were, and third person he के साथ आएगा was, she के साथ आएंगे was. Okay, it was, then they plural है इसलिए उसका साथ कौन सा आएंगे were. रहीम was क्योंकि singular है. Okay, Rahim and Sida plural हो गया, so were. Clear? So all the birds was, birds were. So all the singular subjects was will be used and were will be used with the all the plural subjects, plural nouns or pronouns. Okay, now let us frame a sentence. For example, he subject ले लिया, अपने pronoun ले लिया he. So he it's a singular, so इसका साथ कौन सा आना चाहिए? Was. He was. He was. Thereafter we have to take a verb. For example, verb ले लिया मैंने sell. He was sell. So sell का साथ it's a first form. इसका साथ कौन सा होना चाहिए? ing form होना चाहिए. So he was selling. So then we have to add one object. जरूरी थोड़ी है. अगर object चाहिए तो object. He was selling fruits. Okay. He was selling fruits in the market. एक sentence form हो गया. It's very easy. If you know the structure of the sentence, it is very easy to frame. Yes, any tenses. So he was selling fruits in the market. Past continuous tense में एक sentence हो गया. Now let us see how to frame its negative. Negative frame करना बहुत आसान है क्योंकि इधर helping verb was और were है तो उसका साथ कौन सा लगाना? Not लगाना. So subject then plus was or were helping verb then thereafter plus not. So negative sentence frame हो गया. Not plus verb ing plus object. Okay, so this is a negative sentence. For example, ये sentence को अपन लिख देते हैं. So he का साथ कौन सा आया था? Helping verb was. तो उसका बाद में कौन सा लगाना? He was not लगाना. He was not. Then verb आएंगे ing form of the verb. He was not selling fruits. He was not selling fruits in the market. Okay, ये negative sentence हो गया. So it is very easy. So they were playing in the garden. So negative sentence कैसे पढ़ेंगे? They were not playing in the garden. They were watering the plants. They were not watering the plants. He was studying hard. He was not studying hard. He was working hard. He was not working hard. So not लगाने से negative sentence frame हो जाएगा. So next let us learn how to frame yes or no question. yes or no question कैसे फ्रेम करेंगे? yes or no question फ्रेम करने के लिए was और were दो हेल्पिंग वर्ब इसमें है इसलिए वो पहले यूज करना है. was और were प्लस देन उसको बाद में कौन सा आएंगे? so subject must be used, then verb ing form of the verb plus object. Okay, so was or were plus subject ing form of the verb plus object. ये same sentence को अपन question frame कर देते हैं. Okay, he was selling fruits in the market. So here we have to ask the question, yes or no question. तो helping verb तो दे रखा was. So you have to use was first. Was helping verb use किया, then उसके बाद में subject. Subject कौन सा है? He is the subject. So was he. Then उसके बाद में कौन सा आएगा? ing form of the word. So was he selling? Was he selling fruits in the market? Fruits in the market. I was, yes, question. So I was teaching English. Okay, I was teaching English. So was I teaching English? They were learning grammar. Were they learning?
वेयर दे लर्निंग ग्रामर। कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना, सब्जेक्ट को पहले, नाउन और प्रोनाउन को पहले यूज करना। सो yes or no क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड, वेरी इजी। नाउ वी हैव टू फ्रेम द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जैसे इंफॉर्मेशन वर्ड, वेयर, व्हेन, हाउ, विच और सब यूज करके, व्हाट, ये सब यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करना। उसमें फॉर एग्जाम्पल ही वॉज सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। अब अभी अपन को मार्केट आंसर मिलना है। सो अगर मार्केट आंसर मिल रहा तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ बेच रहा था। ओके, सो कहाँ वो फ्रूट्स बेच रहा था। सो व्हाट विल कम देयर, वेयर। सो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए पहले आएगा इंफॉर्मेशन वर्ड, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वर्ड प्लस बाकी सब एस का, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर प्लस वर्ब, यस सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन यस क्वेश्चंस। नाउ लेट्स फ्रेम द क्वेश्चंस। सो हमको मार्केट आंसर मिलना है। सो कौन सा इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करेगा, वेयर। सो वेयर के बाद में कौन से आएंगे, इंफॉर्मेशन वर्ड यूज किया। उसके बाद में सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए हमको यूज करना वाज। सो वेयर वाज। उसके बाद में कौन सा आएंगे, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा है, ही इज द सब्जेक्ट। सो वेयर वाज ही। देन सब्जेक्ट के बाद में आएंगे यस वर्ब आईएनजी फॉर्म, वेयर वाज ही सेलिंग द फ्रूट्स। ओके, वेयर वाज ही सेलिंग द फ्रूट्स। सो क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉरी आंसर मिल जाएगा इन द मार्केट। सो व्हाट वाज ही सेलिंग इन द मार्केट, क्या बेच रहा था। सो वी गेट द आंसर फ्रूट्स। Okay, so this is the way of asking questions. I hope all of you understood this one. Now let us go to an important part, that is the uses of past continuous tense. क्या क्या uses है past continuous tense में? First use है to describe an action or event in progress at a point of time in the past. कोई समझ में आ गया? मतलब यही है, पास्ट में एक एक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू चल रहा था और प्रोग्रेस में था और कंटिन्यूटी में था, वो बताने के लिए अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ओके, सो आई हैव रिटन एन एग्जांपल हियर। मैंने इधर एक एग्जांपल लिख दिया। दे वेर प्लेइंग एट 5 o'clock। सी हियर द यस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज एट 5 o'clock। दे वेर प्लेइंग एट 5 o'clock। वो टाइम पर 5 बजे वो खेल रहा था। इसका मतलब 5 बजे वो पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एक्शन चलते जा रहा था। That means it was in its continuity. Past में वो action चल रहा था। Okay, so he was running fast at that time. He was running fast at that time. वो टाइम पर और फास्ट दौड़ रहा था। So at that time that is the point of time. So she was sleeping. Okay, she was sleeping at that moment. वो moment में वो सो रही थी। इसका मतलब so accident happened. Suddenly an accident happened. She was sleeping at that moment. वो मोमेंट में वो सो रही थी। तो इसका मतलब एक पास्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक्शन, कोई भी एक एक्शन चलते जा रहा था। ओके, सो फॉर दैट वी कैन यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड नेक्स्ट यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। इधर देखो वो एक्शन पास्ट में एक पीरियड ऑफ टाइम पर स्प्रेड हो गया। ओके, दैट मीन्स पास्ट में एक एक्शन शुरू हो गया तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो कंटिन्यू चलते जा रहा था। ओके, इट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द पास्ट एंड एंडेड देयर, उधर खत्म भी हो गया। इसका मतलब पास्ट में शुरू होके पास्ट में खत्म हो गया एक यस पीरियड ऑफ टाइम पर। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। आई वाज वाचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। ये देखो पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में टीवी देख रहा था। इसका मतलब पूरा वो मॉर्निंग टाइम पर मैं यूज किया टीवी देखने के लिए। वो एक्शन इट वॉज इन इट्स कंटिन्यूटी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा, इन द मॉर्निंग। सो द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग द होल आफ्टरनून। बच्चों पूरा आफ्टरनून में खेला था। द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग यस इन द होल आफ्टरनून। इसका मतलब पूरा आफ्टरनून में वो एक्शन चलते रहता। सो वी वर क्लीनिंग द हाउस ऑन संडे। हम संडे को घर साफ कर रहे थे। इसका मतलब पूरा संडे में वो एक्शन वाज गोइंग ऑन। सो इन ऑर्डर टू टेल सच एक्शंस, उसका मतलब पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम पर एक्शन अगर पास्ट में चल रहा था, वो एक्शन बताने के लिए अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट यूज
It is used to describe a continuing action in the past when another action took place. देखो एक एक्शन पास्ट में ऐसे चल रहा था, उसके बीच में एक एक्शन दूसरे एक एक्शन हो गया. That means one action was going on in the past, in between another action happened. Clear? One action that was going on in the past and in between one action is going on in the past, in between you see that another action happens. जो चलते जा रहा था वो एक्शन बताने के लिए अपन यूज करेगा पास्ट कंटिन्यूस, और बीच में जो एक्शन हो गया वो अपन बताएंगे सिंपल पास्ट में. ये आपने सिंपल पास्ट भी पढ़ रखा है. सो लेट अस सी एन एग्जांपल हियर. जॉन वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड. यू सी दैट पास्ट कंटिन्यूस में ये एक्शन चल रहा था. जॉन वाज वेटिंग फॉर मी, जॉन मेरे लिए वेट कर रहा था. तो उसके बीच में एक एक्शन हो गया कौन सा? व्हेन आई अराइव्ड, मैं आ गया तो वो मेरे लिए वेट कर रहा था. ओके, सो आई वाज स्टैंडिंग इन द बस स्टैंड. ओके, व्हाइल आई वाज स्टैंडिंग इन द बस स्टैंड ए साइक्लिस्ट डैश्ड मी. ए साइक्लिस्ट आके मुझे डैश किया. सो हियर द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन. Okay, what was that? The action was going on that I was standing in the bus stand. While I was writing a novel, I slept immediately. जल्दी मैं सो गया. इसका मतलब वो एक्शन चल रहा था writing. While I was writing on the board, the pen fell down from my hand. मेरे हाथ से पेन नीचे गिर गया. तो एक्शन चल रहा तो मैं बोर्ड में लिखते जा रहा था, उसी टाइम में बीच में एक एक्शन हो गया कौन सा? वो पेन नीचे गिरा. As I was teaching in the class, or while I was teaching in the class, the principal ended suddenly. So action चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, उस टाइम में टीचर एकदम क्लास में एंट्री हो गया. So जो बीच में जो एक्शन होगा that you have to tell in simple past. जो action that was in continuity that you have to tell in a past continuous tense. Okay. Now let us see the fourth use. Two or more actions taking place at the same time. Two or more actions taking place at the same time. That means एक और दो एक्शन एक ही टाइम पर चलते जा रहे. ओके, ये कंटिन्यूटी में जा रहे, पास्ट में जा रहा था, वो एक्शन बताने अपन कौन सा यूज कर सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका मतलब टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट. फॉर एग्जांपल यू सी दैट सी हियर शी वाज डांसिंग, ओके, व्हाइल ही वाज सिंगिंग. हियर टू एक्शंस आर देयर. एक तो वो डांस कर रही थी और वो क्या कर रहे थे? ही वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था. दोनों एक्शन एक टाइम पर जा रहा था. सो while he was singing, she was dancing. Okay, while I was teaching in the class, the children were shouting. ये देखो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चा सब चिल्ला रहा था. While he was teaching in the class, the children were sleeping. वो क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चा सब सो रहा था. सो दोनों एक्शन एक टाइम पर और है. Okay, so the mother was sleeping when the baby was crying. Mother सो रहा था लेकिन बच्चे क्या कर रहा था? वो रो रहे थे. So here you see that the two actions, simultaneous action, ये दोनों एक टाइम पर चलते रहते हैं. Okay, I was running while he was walking. मैं दौड़ रहा था लेकिन वो चल रहा था पहले. सो टू एक्शंस, साइमल्टेनियस एक्शंस एक ही टाइम पर चलते रहते थे पास्ट में, वो बताने अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. मतलब पास्ट में हमेशा मतलब रिपीट होते हो रहा था. सम एक्शंस वेयर रिपीटेड, बार बार होते जा रहा था पास्ट में. ऐसे एक्शन अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट he was continuously asking for money. He was continuously asking for money. वो हमेशा पैसे पूछ रहा था. तो इसका मतलब पास्ट में वो एक्शन रिपीट होते जा रहा था. ओके, सो ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट मी. ये हमेशा मेरे लिए कंप्लेन करता था. ही वॉज ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड. ये हमेशा बाहर देखता था. ओके, सो शी वॉज फ्रीक्वेंटली रिंगिंग अप मी. वो हमेशा मुझे फ़ोन करते थे. So here you see that a frequent action in the past. So जैसे frequent actions always use करके और continuously और continually और frequently, constantly ऐसे word use करके अपन ऐसे action बता सकते हैं past continuous tense में. And next use that is to express a gradual development of an action. एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट बताने के लिए कोई भी एक एक्शन का धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट होते है, वो एक्शन अपन बता सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं.
The patient was getting restless. Patient restless होते जा रहा था. The patient was getting restless. It was getting dark. Okay, it was getting dark और रात होते जा रहा था. He was becoming stronger और stronger होते जा रहा था. He was becoming powerful. He was getting powerful. Okay, he was conquering more and more countries. और एक एक कंट्रीज उसको धीरे धीरे वो कॉन्कर कर रहा था. इसका मतलब ये एक्शन पास्ट में ग्रेजुअल एक्शन. ओके, इट हैपेंड ग्रेजुअली इन द पास्ट. वो एक्शन बताने के लिए भी अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Dear students, I hope all of you understood this very well. Okay, so please like and subscribe my channel. Thank you for watching it. Thank you very much.